پنجاب کو اسلحہ فری بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ سخت اسلحہ قوانین، نئے ریگولیشن سسٹم اور ڈرون پالیسنگ کی منظوری دے دی۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحہ کی اثر نو اسکروٹنی ہوگی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو 15 دن میں ویپن واپس کرنا ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے عباس نقوی۔ جرائم کے خاتمے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت غیر معمولی اجلاس۔ پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اہم ترین فیصلے۔ صوبے بھر میں موجود 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی 89 جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی کی جائے گی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب کو پرامن، اسلحے سے پاک اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس صوبہ بنانا میرا مشن ہے۔ ڈرون پولیسنگ اور نیا مربوط سیکورٹی اینڈ آرمز ریگولیشن سسٹم تیار۔ پنجاب حکومت کا سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کرانے کا اعلان۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے افراد کو 15 دن کے اندر اسلحہ واپس کرنا ہوگا۔ لائسنس رکھنے والے اور جاری کرنے والے دونوں کی تصدیق ہوگی۔ نجی سیکورٹی کمپنیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا اور ان کے گارڈز کو پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 سے منسلک کیا جائے گا۔ اسلحہ کلچر کی حوصلہ شکنی کے لیے حکومت نے سالانہ لائسنس فیس میں 100% اضافہ بھی کر دیا ہے۔ عباس نقوی، سما، لاہور۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات قطر میں ہونے والی بیٹھک کا فالو اپ ہے، جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے۔ مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب استنبول پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے، جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستان نے 2 ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ ملک کی سلامتی صورتحال کی وجہ سے افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے اور رہے گا۔ امید ہے افغان عبوری حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے فتنۃ الخوارج، TTP، فتنۃ الہندوستان اور BLA سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے۔ طاہر حسین اندرابی کی بطور ترجمان دفتر خارجہ پہلی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ 19 اکتوبر 2025 کو دوحہ میں طے پانے والے پاکستان افغانستان امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کہا، یہ معاہدہ خطے میں امن استحکام یقینی بنانے کی پہلی مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا حامی رہا اور رہے گا۔ امید ہے افغان عبوری حکومت بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی۔ As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities including FAK, TTP, FAH and BLA. ترجمان دفتر خارجہ پر امید ہیں کہ استنبول میں آج سے شروع ہونے والے مذاکرات امن کی کوششوں کو مزید تقویت دیں گے۔ Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. ایک سوال پر ترجمان نے واضح کیا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف ڈیمز کے معاملات کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ فتنہ خوارج کے 8 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے۔ ہلاک خارجی ریاستی اداروں اور عام شہریوں کے خلاف سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ فتنہ الہندوستان ہو، فتنہ الخوارج یا کوئی اور، بھارتی حمایت یافتہ کوئی بھی پاکستان دشمن نہیں بچے گا۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں ایک اور کامیاب کارروائی، 8 خوارج ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ قومی قیادت نے واضح کیا کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔
IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं गैर कानूनी असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अवाम इस मुहिम को संजीदा लें। सूबे से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। जराइम की शरह में 70% कमी का दावा भी कर दिया। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इस नाजायज असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है। दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 1 आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है। किसी बदमाश को हमने इजाजत न दी है न देंगे कि वो इस रेड लाइन को अबूर कर सके। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। 2500 से ज्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है। 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। सीएम साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए ₹1.5 अरब डेवलपमेंट में दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे में किसी सूरत फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। शहरियों का जानी और माली नुकसान कबूल नहीं। बानी से मिलने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया मगर मिलने नहीं दिया गया। अब आवाम के पास जाऊंगा। नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर। वो हथियारों की बमबारी जिससे कोलेटरल डैमेज होता है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से आपसे मिलूं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। टिकटॉक बनाने की सजा मौत। कराची में SIU के एहलकार जल्लाद बन गए। 16 साल के नौजवान इरफान को हिरासत में लेकर इतना मारा कि जान ही ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। इरफान के जिस्म पर जख्मों के बड़े बड़े निशानात ने तशद्दुद की तस्दीक कर दी। नवीद कमाल की रिपोर्ट देखते हैं। मुहाफिज जान के दुश्मन बन गए। भावलपुर से कराची सैर के लिए आने वाले कम उम्र नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया। बुध को SIU पुलिस ने इरफान को दोस्तों के साथ आयशा मंजिल से हिरासत में लिया था। पुलिस जराये ने इंकशाफ किया है कि इरफान बुध को ही पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया था। शाम 7 बजे लाश जिना अस्पताल लाई गई तो MLO ने पोस्टमार्टम से इनकार किया, जिस पर एहलकार लाश वापस ले गए और जुमेरात को दोबारा पोस्टमार्टम की कोशिश की। जुमे की सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। सर, चेहरे और कमर समेत जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। वजह मौत का तयन केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट के बाद हो सकेगा। 16 बरस का इरफान घर का सबसे बड़ा बेटा था। गुरसा ने ईदी सर्द खाने के बाहर लाश रख कर एहतजाज भी किया। तशद्दुद का निशाना बनाते रहे मेरे इरफान भाई को। हमें मारते रहे, पीटते रहे, हमारी पट्टियां तक भी नहीं खोली इन जालिमों ने। जब मेरा इरफान भाई इंतकाल कर गया तो फिर भी उसको डंडे और रूड़ियां मारे। 22 को ये बच्चा इंतकाल किया, 22 तारीख को उठाया और 23 को हमें इतला दी कि आप जिना हॉस्पिटल आ जाएं। जब हम जिना हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ इसकी लाश रखी हुई थी। बोला हमें लिख के दे दे और हम जो इसके अखराजात हैं वो भी हम आपको दे देते हैं और इसकी लाश को लेकर चले जाएं। बच्चे का दिल फट गया है, हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। तो हमारा कोई कसूर नहीं, हम गलत फहमी की बुनियाद पर हम इसको लाए थे, लिहाजा आप लिख के दे दें, आप ले जाएं। इरफान की तदफीन आबाई इलाके अहमदपुर शर्किया में की जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा कराची। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर के आबाई इलाके गुजरावाला में तदफीन कर दी गई। अब तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। इस्लामाबाद पुलिस की 23 अक्टूबर की क्राइम डायरी में वाक़े का जिक्र तक नहीं। अदील अकबर के नफ्सियाती मसाइल से दोचार होने का इंकशाफ। DG सेफ सिटी इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई तहकीकाती टीम ने SP के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सरकारी जराये के मुताबिक अदील अकबर ने गुज़िश्ता रोज अपने मातहत से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। उन्हें जख्मी हालत में पॉली क्लिनिक मुंतकिल किया गया था, लेकिन उनकी जान ना बचाई जा सकी। SP के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन ताहाल अनलॉक नहीं हो सका। गुज़िश्ता दिनों उनके 2 बार माहिर नफ्सियात से रजू करने, चंद रोज कबल डेंगू टेस्ट मुस्बत आने और वक़ुआ से 2 रोज कबल कोरोना वायरस के शिकार होने की भी इतलात है। जराये का ये भी कहना है कि SP अदील अकबर की छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी।
स्मॉग ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए, फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 जबकि फैसलाबाद में 500 तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुसलसल खुश मौसम और फिजाई आलूदगी के बायस मशरक़ी पंजाब के अजला स्मॉग के जेर असर रहेंगे। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला भी इंतहाई फिजाई आलूदगी के शिकंजे में है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 तक की हद को जा पहुंचा है। इसी के साथ साथ फैसलाबाद में AQI 500 से भी तजावुज कर गया है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 500 से तजावुज कर गया है। तो स्मोक की एक वजह खुश्क मौसम और बारिश का ना होना भी है। महकमा माहौलियात की जानिब से एंटी स्मोक गन का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दिन ब दिन ये जो AQI है इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। जो महकमा माहौलियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहरी जो हैं आज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि जो है वो स्मोक के मसले से बच सकें और खास तौर पर जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है वो इस मसले से बच सकें। जी, लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तामीरात के दौरान EPA के प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अनस जफर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात स्मोक का असर कम करने के लिए मुतहरिक। लाहौर में ज्यादा शरह वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का बाकायदगी से इस्तेमाल जारी। तामीराती और तरक्याती मंसूबों पर धूल मिट्टी से बचाव के लिए इंतजामिया ने हिफाजती ग्रीन शीट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जबकि हर घंटे के बाद वाटर टैंक से पानी का छिड़काव भी जारी है। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात पर अपने अपने तासरात का इजहार भी कर दिया। छिड़काव जो है ना, ये बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, और अगर ये छिड़काव एक घंटे के बाद ना करें तो यहाँ पे जब हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ खड़े रहे। गवर्नमेंट की बजाय हमारा जो UN नेशन है उनको भी इस चीज़ को करना चाहिए कि जिन कंट्रीज़ में माहौलियाती आलूदगी को मसला हो रहा है तो वो उनको रोकें। दूसरी जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और महकमा पुलिस ने SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा दिया है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ अनस जफर शमा, लाहौर।